हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव। नंबर 1, द वाइस प्रेसिडेंट shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such elections shall be by secret ballot. नंबर 2 यानी नंबर 2, the vice president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house of the date on which he enters upon his office as vice president. Number 3, no person shall be eligible for election as vice president unless he is a citizen of India, B has completed the age of 35 years, and C is qualified for election as a member of the Council of States. So दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इसमें? भारत का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, 35 एज कंप्लीटेड कर चुके हों, है ना, और is qualified for election as a member for the Council of States. Number 4, a person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office of profit under the government of India or of government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said governments. Explanation. Explanation. For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state. 67, terms of office of vice president. The vice president shall hold office for a term of 5 years. जिस तरह से राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल है राष्ट्रपति पद का, उसी तरह से उपराष्ट्रपति पद का भी जो टर्म है, ऑफिस का जो टर्म है, वो है 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो शपथ लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं, उस दिन से स्टार्ट होता है उनका टर्म। Provided that a vice president may by writing under his hand address to the president resign his office. B, a vice president may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all then members of the council and agreed to by the House of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. C, a vice president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. 68, time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy. Number 1, an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term.
Number 2, an election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation, or removal or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 67, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office. तो अभी मैं इतना पढ़ूंगी, 68 आर्टिकल तक पढ़ा है मैंने। अब मैं इसको हिंदी में देख लेती हूँ, हिंदी में क्या है। 66 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है, नंबर 1, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। नंबर 2, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया, यानी खाली कर दिया है, क्योंकि दो दो पदों पे तो रह नहीं सकते, एक ही पद पे रहना होगा। इसलिए जो पहले के जो पदों पे रह रहे हैं उनको वहाँ से उन पदों को खाली करना पड़ेगा। नंबर 3, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, योग्य हो, यानी नंबर 4, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वे संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 67 अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। जिस तरह से राष्ट्रपति अपना पद त्याग करते हैं तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना जब पद त्याग करेंगे तो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। नंबर 4, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है, जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। 68 अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नंबर 2, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा, कल मैं पढ़ूंगी 69 उस उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही।
मैं संध्या मैम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक यू।